મોદીએ ગોયાના સંસદમાં વિશેષ સત્રને સંબોધિત કર્યું. તેમના સંબોધન દરમિયાન પીએમ મોદીએ ભારત અને ગોયાના વચ્ચેના સંબંધોને ગાઢ ગણાવ્યા. તેમણે કહ્યું છે કે અમારી માટી અને મહેનતના સંબંધો છે. ભારત અને ગોયાના વચ્ચેના સંબંધો સુખ અને દુઃખની બંને પરિસ્થિતિઓમાં આત્મીયતાથી ભરેલા રહ્યા છે. આ સાથે વડાપ્રધાને સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવા બદલ તેમનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો અને આ એવોર્ડ ભારતના લોકોને સમર્પિત કર્યો. गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है. मैं इस सम्मान के लिए आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. તો આ તરફ રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ વધે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. યુક્રેને વળતો જવાબ આપતા ગઈકાલે રશિયાએ યુક્રેનના સૈન્ય મથક પર હાઇપરસોનિક બ્લાસ્ટિક મિસાઇલથી હુમલો કર્યો છે. આ પછી રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને પણ પશ્ચિમી દેશોને ચેતવણી આપી હતી. પુતિને કહ્યું હતું કે મોસ્કો યુક્રેનને મદદ કરતા કોઈપણ દેશના સૈન્ય મથકો ઉપર હુમલો કરી શકે છે. પુતિને કહ્યું કે પશ્ચિમી હુમલાના જવાબમાં રશિયાએ નવી મધ્યવર્તી રેન્જની બેલેસ્ટિક મિસાઇલનું પરીક્ષણ કર્યું છે. On November the 19th, 6 ATACMS missiles manufactured in the US were used, and on the 21st, a combined attack using Storm Shadow manufactured in the UK and missiles manufactured in the US were used to attack missile targets in the Bryansk and Kursk regions of the Russian Federation. It is not Russia, but the United States who have destroyed the system of international security, and they are trying to preserve their hegemony and stoking a global conflict. We have always preferred, and we still prefer, to resolve our disagreements using peaceful means, but we are prepared for any scenario, and if anyone has any doubts, they shouldn't. There will always be a response. તો આ વચ્ચે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીએ પણ રશિયા તરફથી થયેલા હુમલાની નિંદા કરી. Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватись з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла стійко, хоробро, міцно, гідно. Це одне з головних слів про Україну. તો રશિયા યુક્રેન વચ્ચે ટેન્શન પર વધારે અપડેટ લઈએ મોસ્કોથી સંવાદદાતા આકાશ શર્મા પાસેથી. આકાશ, रूस यूक्रेन के बीच चल रही टेंशन पर क्या अपडेट है? रशिया और यूक्रेन के बीच स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण हो गई है. हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और रशिया का कहना है कि ये इस्तेमाल यूक्रेन के अमेरिकी और ब्रिटिश मेड वेपन्स के इस्तेमाल के बाद किया गया. दरअसल यूक्रेन ने हाल ही में ATACMS और हाइमार्स जैसे हथियारों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के वेपन हैं, जिसके बाद रिप्लाई के रूप में, जवाब के रूप में रशिया की ओर से हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया. दरअसल ये मिसाइल 3000 किलोमीटर से 5500 यानी कि 5500 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता रखती है. शुरुआत में यूक्रेन की ओर से कहा गया कि रशिया ने यहां इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा है. हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से और रशिया की तरफ से भी ये साफ किया गया है कि ये मिसाइल दरअसल हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी और ये न्यूक्लियर हमला नहीं था. कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर हमला था, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का जो इस्तेमाल होता है वो अक्सर न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ होता है, लेकिन मौजूदा समय में कम से कम ये न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ मिसाइल नहीं थी और कन्वेंशनल कहें कि वॉरहेड का इस्तेमाल इसमें किया गया था. हालांकि अगर इस युद्ध
की बात करें तो 33 महीने से ज्यादा ये युद्ध चल रहा है और मौजूदा समय में यहाँ जहाँ हजारों की संख्या में कैजुअलिटीज दोनों तरफ हुई हैं, तो वहीं कम से कम इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल अब तक नहीं किया जा रहा था। रशिया का कहना है कि अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल के बाद उसके पास इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उन्हें जवाब के तौर पर इस मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा है। गौरतलब है कि पिछले ही दिनों यूक्रेन ने कहें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले तो यूक्रेन को इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, उसके बाद यूक्रेन ने इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया और अब रशिया ने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर कहीं ना कहीं इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। मौजूदा समय में अगर स्थिति की बात करें तो 33 महीने से ज्यादा ये युद्ध चल रहा है और न सिर्फ यहाँ की इकोनॉमी बल्कि लाइफस्टाइल भी जो दोनों देशों के लोगों की है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां एक तरफ शांति की बात हो रही थी, शांति की उम्मीद जताई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल के बाद कहीं ना कहीं शांति की उम्मीद नियर बाय फ्यूचर में नहीं की जा सकती। भविष्य में क्या होगा इस विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये तो नहीं लगता कि बहुत जल्दी दोनों देशों के बीच में शांति होगी।